My name is Dr. Imran. I am one of the trainee in Chaudhry Parvez Ali Institute of Cardiology, Multan. Today our topic of discussion is airway equipments, and it will be a lengthy topic as we have to cover almost all the equipments that we use in our anesthesia, and the contents will be, I will cover one by one: face mask, and then nasal inhaler, oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, and supraglottic devices, endotracheal tubes, laryngoscopes, and other apparatus. As each can have separate presentation, but as Dr. Amir said that we will have only the overview, and then our facilitator, Dr. Ali Amar, he can add any other information and we can discuss later on. So I try my best to cover all the important information in it, but I apologize that I will not go into detail. I will just give the overview and just give the differences in the equipments. That what is the difference of one equipment from the other. जी सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही, क्लियर। ठीक है सर. So we start our lecture with the face masks, and the definition is it is the device which allows administration of gases to the patient from breathing system without introducing any apparatus to the patient's mouth. So it is totally non-invasive. So we don't introduce any apparatus, we just put face mask on the patient face, and then we can administration our drugs, our gases to the patients. So the face mask is made up of black color, or it can also be made of clear plastics or combination of these. Its parts can be body, seal, and connector. The body is nowadays made of transparent material to see any vomitus, moisture, or secretions from the patients. So the body of the face mask also increase the dead space. So dead space means there will be no exchange of oxygen or CO2. So it can contribute 30% or more of tidal volume in neonates and infants. So if we have 150 ml or 200 ml, so 30% we can calculate it can be a large volume for the infants or neonates. And how we can reduce this? I hope you all understand this. Face mask increase the dead space. As we will see, our endotracheal tubes will decrease the dead space, but all these face masks, that's why we always say use the appropriate size of the face mask as they increase the dead space. We can reduce this by using smaller size masks, increasing pressure on the mask, or changing the volume of the seal occlusion. There are different types of face masks. The most commonly that we use, we call it anatomical masks. The other is the for the children. It has different shape. It has a triangular body and low dead space, and we call this Randall-Becker-Soaks mask, RBS mask. And if we are doing endoscopy and we have to ventilate the patient, we have endoscopic mask. We can see there is a port for the endoscopy, and we can also provide oxygen to the patient with these endoscopic masks. And to make it more pleasant to the patients, we also have different flavors. We also have scented masks. So there are different types of masks. So one important thing that we have studied, they increase the dead space. Our next topic is nasal inhaler. As we use face mask, we also have nasal inhaler. The name is Goldman nasal inhaler. So we can see it looks like a face mask, but it is small in volume. So it is Goldman nasal inhaler. सर आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है आवाज, आप कंटिन्यू रखें। ठीक है सर। जहाँ मसला होगा मैं आपको ओरोफ्रेंजियल, बताऊंगा। ठीक है सर। ओरोफ्रेंजियल एयरवेज, नेक्स्ट इज आवर ओरोफ्रेंजियल एयरवेज। There are different parts of these airways. It has flange and wide portion and curved portions. The most commonly that we use is the Giddel airways, and we can use it for suctioning and exchange of air. And there are different sizes with the color coding, and length is given over here. So I don't go into detail of these because these we have to memorize, and I'll just overview all the equipments. So they also have cuffed oropharyngeal airway. Giddle don't have cuff, but over here we have cuffed oropharyngeal. And if we want to intubate the patient with this airway, we have another airway, we call it Berman intubating airway. So we can intubate by using Berman intubating airway with the tracheal tube. And if we want to use fiber optic for the intubation, we have another type of oropharyngeal airway we call Wespian fiber optic intubating airway. What are the uses of these airways? We can prevent biting of the ETT, biting of the tongue, and we can use it for suctioning. And during ventilation, we also use this. Next is the nasopharyngeal airways. Otherwise, last was the oropharyngeal, and now we are discussing nasopharyngeal airways. We call nasal trumpet and nasal airways also. The most commonly we use Linder nasopharyngeal airways. We can use Tillit, and we can we also have cuffed nasopharyngeal. As we have cuffed oropharyngeal, we also have cuffed nasopharyngeal airway, and we also have binasal because mostly use in single nose. So we also have binasal airways. What can be the complications of these? They can cause airway obstruction, epistaxis, ulceration, dental damage, CNS trauma, laryngospasm, aspiration, latex energy, and gastric distension by all these. Now we move to our next topic, that is supraglottic airway devices. And this is the time frame given. First one was the classic laryngeal mask airway in 1988, and the latest is the Basca mask in 2012. We divided into first generation devices, second generation devices, third generation devices. Supraglottic air devices are divided into three generations based on the inclusion of drainage tubes and removing the cuff and having small bowels. So first generation only have airway tubes, second generation includes drain tubes. Third generation has two drain tubes. So this is the difference between Masca mask and the iGel. So it has two drains. iGel also don't have cuff, and Basca mask also don't have cuff, but iGel has only others have not iGel. Others second generation have one drain tubes, and third generation Basca has two drain tubes. We can also classify according to the position of the sealing. Some seals only the larynx and almost all the laryngeal mask airways. Some seals the pharynx, that are combi tube, king laryngeal tube, cobra palilaryngeal airway, and other are esophageal sealings. And these are cuffless. All the LMAs, combi, king laryngeal tubes, these are with the cuffs, and but Basca mask, iGel, Slipa, AirQ, all these are cuffless. So this is a classic LMA. It has a 15 connector. It has only one airway tube, inflation balloon, and it has cuff. So it is a reusable. Why I'm saying it is reusable? Because there are different sizes of the classic LMA, and it is a LMA unique. What is the difference between the unique and classic? Unique is disposable and classic is reusable. Almost same. LMA flexible.
we can flex this LMA into any shape according to our requirement for different surgeries. So that's why it is LMA flexible, almost same shape of the LMA classic, LMA unique, and LMA flexible. But the difference is one was reusable, LMA unique was um, single use, and now LMA flexible is we can modify into any shapes. This is second generation Pro Seal LMA. So I told you earlier that second generation have suction drain. So here we see there are two tubes. One is a drain tube and other is a airway tube. Other things are same, 15 connector and cuff. All these are with the cuff, except the iGel third generation and Basca. They are cuffless. So what is included in the second generation is the second tube, that is the drain tube. So we can see there are two tubes. So first generation has single tube and now it has two tubes. Proceed. LMA Supreme. The name shows it is supreme. Why it is supreme? Because it has a combination of classic and intubating LMA, and it is a second generation. So it has drain tube, it has features of classic, and we can use it also for the intubating LMA. So that's why we call it as a LMA Supreme. Cobra LMA, it is named because of the shape of the tube. You see, it looks like a cobra, like snake. LMA fast track intubating LMA. We always study intubating LMA. We also call that LMA fast track. So LMA Supreme has intubating features and the type 1. So LMA C track. It is just like all others LMAs, but it has a camera on this. We can fix camera on this LMA, so that's why it is called LMAC track. So there are king laryngeal tubes or laryngeal tubes, cobra laryngeal tubes, king laryngeal tubes. What is the difference between these two? It has two cuffs: proximal cuff and distal cuff. Proximal cuff for the oropharynx and distal cuff for the esophagus. इमरान So for the इमरान esophagus, it prevents. Yes, sir. आपका ना चार्जर जो है वो मेरे ख्याल कनेक्ट नहीं है, आपकी बैटरी डाउन हो रही है, सिस्टम बंद हो जाएगा, कनेक्ट कर लो। जी जी सर, ठीक है, वो ठीक है सर, कनेक्ट कनेक्ट कर लो। ओके, जी कंटिन्यू। सर, जी सर. So distal cuff is used to prevent the regurgitation during the procedure. So it has two cuffs, proximal and distal. Combi tube. Combi tube is a combination of laryngeal, laryngeal and esophageal. So it is for the larynx and for the esophagus. So that's why it has two tubes, and it has a combination of two tubes, but it also has two balloons, two cuffs, proximal and distal, the same. So I told you that we have for larynx and for pharynx. So for the pharynx, we use this and slipper. So I would just want to ask you, please look at the shape of this slipper. It looks like iGel. It looks like iGel. So the only difference is what I have seen is the bridge. So slipper has bridge, and it is used to for the pharynx. And next is iGel. iGel has 15 connector, and it also has a drainage tube. It has a bite block, and it is a non-inflammable cuff. So all the previous they all have cuff, but now these don't have cuff. So these are the second generation airway device. How they work? They adapt to patient's airway anatomical seal of the pharyngeal, laryngeal, and perilaryngeal structures. So they seal according to the anatomy of the patient. We don't have to put air or any water whatsoever into the cuff of the LMAs.
They have a gel, so it fits according to the anatomy of the. So they provide effective seal without a cuff. There are different sizes of eye gel. So next is Basca mask. This is third generation supraglottic airway device. As I told you, what is the difference between Basca mask and all others? Basca mask has double gastric channel. One channel is open to air, so less chance of esophageal wall impinging to gastric opening during suctioning. What does the second channel do? When we do the suctioning, तो esophageal wall के ऊपर जाके वो impinge हो जाता था, जिसकी वजह से डैमेज होने का खतरा होता है. तो ये ओपन होता है टू द एयर, जिसकी वजह से impinge नहीं होता during suctioning. This is the advantage of Basca. This is the latest in 2012, and this is third generation. It also looks like slipper and eye gel, but it has two drainage ports. So this was all about our supraglottic airway devices. So there are three generations. First generation was with the cuff. Second and third were without cuff. They also have been manufactured according to the material they use, polyvinyl chloride or PVCs or silicone, and they also divided according to the drainage ports. So, and also with the camera. So according to every device has something special in it. So I have only give you the difference of all these equipments. Next is the most important, and that is the endotracheal tube, and this is a supraglottic access. What is that? It is an infraglottic airway device, but it is a supraglottic access. Please note the difference. That was पहले हमने supraglottic airway device पढ़े थे, अब हम infraglottic airway device पढ़ रहे हैं. इसमें दो हैं. इसमें असेस हमारी फिर भी सुप्राग्लैटिक है, क्योंकि जब इंफ्राग्लैटिक असेस में हमारी सर्जिकल चीजें आ जाती हैं, जिसमें हम ट्रेकियोस्टमी भी करते हैं और रेट्रोग्रेड इंट्यूबेशन भी करते हैं या क्राइकोथेराइडोटमी भी कर सकते हैं. तो इसमें असेस हमारी सुप्राग्लैटिक ही है, लेकिन ये इंफ्राग्लैटिक एयरवे डिवाइसेज हैं, जिसके अंदर हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब्स भी आती हैं या फाइबर ऑप्टिक डिवाइसेज भी आएंगी हमारी, जो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. तो एंडोट्रेकियल ट्यूब हैज मशीन एंड, जिसके ऊपर यूनिवर्सल कनेक्टर लगा होता है, ट्रेकियल एंड जिसके आगे बेवल टिप भी होती है, मॉर्फीज आई होती है. इसकी टाइप्स होती हैं, इट कैन बी कफ्ड, अनकफ्ड और डबल ल्यूमन. जब मैं बता रहा था कि आपको नोट करें कि ये जो कॉम्बी ट्यूब थी उसमें और इसमें क्या फर्क है, वो ईसोफिजियल और लेरेंजियल था, ये डबल ल्यूमन है. ये ट्रेकियल और एंडोब्रोंकियल होता है. डबल ल्यूमन और कॉम्बी में फर्क नोट करें थोड़ा सा. एंडोब्रोंकियल की लेबलिंग में क्या है, यूनिवर्सल कनेक्टर दिया हुआ है, रेडियो पेक लाइन दैट वी कैन सी ऑन द एक्सरे द पोजीशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब, and it is or here it is written PVC tube. It can be silicone or some other material. So it has pilot balloon. इस बैलून का फायदा ये होता है कि हम इससे फील कर सकते हैं कि हमारे जो है ना इसके अंदर प्रेशर कितना है. और ये इन्फ्लेशन ट्यूब दी हुई है, वन वे वेल्व होता है, जब ये फिल हो जाता है तो ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एयर बाहर नहीं जा सकती. और कफ दिया हुआ है, ये अगर हम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे कफ के बारे में. बेवल एंड है, बेवल एंड इसलिए बनाया गया है ताकि हमें जाके ट्रॉमा ना करे, और दूसरा ये लेफ्ट साइड से होता है ताकि इंक्यूबेशन के अंदर हमें क्लियर नजर आए, इंक्यूबेशन में हेल्प करे. और मॉर्फी आइज का ये होता है कि अगर बेवल एंड नीचे कैरिना या ट्रेकिया के अंदर कहीं जाके फिक्स हो गया है, तो वहां से अगर नहीं वेंटिलेशन हो पा रही तो हमारी मॉर्फीज आइज के अंदर दिस इज ओपनिंग, तो इससे हमारी एक्सचेंज हो सके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. तो मार्किंग मैंने बता दी है. और हम जी सर एक एडअप करूंगा मैं कि मर्फीज आई जो है ना, आप इसको रिट्रोग्रेड इंट्यूबेशन में एज एन एंकर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं कि रिट्रोग्रेड से थ्रेड गुजार के इसे टाई करके नीचे खींच लीजिए. ठीक है. एक चीज और आप ऐड करेंगे, मर्फीज आई बेसिकली आपका जो एप आर्टेरियल ब्रोंकस राइट साइड का है उसको वेंटिलेट करने के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया था. एपिक का वो जो है उसका सही है सर. हाँ जी, एपिकल लोब के लिए. जी सर, लेकिन सर वो रेट्रोग्रेड की है तो मैं वो फिर शायद बाद में बता दें या अभी बता दें. रिट्रोग्रेड में जस्ट यानी एक आपको एक होल मिल रहा है जिसके अंदर आप एक थ्रेड टाई कर दें. ठीक है.
और अच्छा अच्छा उसको सर, मतलब ठीक है सर, खींचते हैं नीचे की तरफ, तो ईटी ठीक उसी ठीक, मुझे कोड को फॉलो एग्जैक्टली करती ठीक है है सर। ये। ठीक जी है, जी सर, ये समझ किसी आ बुक गया। में नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको जी मिल जी सर, सकता है। थैंक यू सर, थैंक ओके। यू। सो इस ये मैंने आपको पहले बताया है। तो हम इसको जो मेजर करते हैं इनर डायमीटर के, मतलब हम बताते हैं 7 है 8 है, ये हमारा इनर डायमीटर होता है। आउटर डायमीटर भी होता है। टाइप ऑफ ट्यूब ओरल भी हो सकती है, नेजल भी हो सकती है। इम्प्लांटेड टेस्ट होता है, ये डिफरेंट है। जी टेस्ट भी होता है, आईटी टेस्ट भी होता है, ये मुख्तलिफ के ऊपर लिखा हुआ होता है। इनका रीयूजेबल है, नॉन रीयूजेबल है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमारे जो पेपर होता है या कवर जो इनका या जो ट्यूब होती है इनके ऊपर सारा लिखा हुआ होता है। और ये सिंगल यूज होता है। नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर भी लिखा होता है, मार्किंग फॉर लेंथ ऑफ इंसर्शन भी लिखा होता है, इंडिकेटर फॉर पोजीशन ऑफ, ये वो ब्लैक लाइन की बात कर रहा है, इंडिकेटर फॉर पोजीशन ऑफ वोकल कार्ड। ये खैर जब हम भी थे, अभी भी मोस्टली हम ब्लाइंडली बस वोकल कार्ड अंदर डाल देते हैं, जितनी चली जाए चली जाए। हमारे न्यू पीजीआर भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये बताता ये है कि जब वो ब्लैक को वोकल कार्ड से अंदर चला जाए तो वहां तक आपने इंसर्ट करना होता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। इंडिकेटर फॉर पोजीशन ऑफ वोकल कार्ड, ये ब्लैक लाइन होती है, इसके इस पे नजर नहीं आ रही। अच्छा, आइडियल ट्यूब की क्या रिक्वायरमेंट है? इट शुड बी स्मूथ, नॉन इन्फ्लेमेबल, ट्रांसपेरेंट, नॉन किंक होनी चाहिए, लेटेक्स फ्री होनी चाहिए और नॉन रिएक्टिंग टू लुब्रिकेंट्स होनी चाहिए। और इसके कफ के प्रेशर जो है वो किस किस चीज़ों से बढ़ सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कफ का प्रेशर बढ़ा सकती है। वेंटिलेशन विद नाइट्रस ऑक्साइड प्रेशर बढ़ा सकती है। और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से भी बढ़ सकता है। लेरिंगोस्पाज एडिमा, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद इसका 10 मिलीमीटर मर्करी जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है, सेंटीमीटर वाटर सॉरी। और डिक्रीज इन कफ प्रेशर, सिडेशन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, सिडेट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड करते हैं, रिड्यूस कोर टेम्परेचर या टाइम, चेंज इन बॉडी पोजीशन की वजह से भी हमारा एयर लीक हो सकती है और कफ का प्रेशर लीक हो सकता है। तो ये चीज़ें नोट कर लें, हमारा कफ का प्रेशर किस चीज़ में बढ़ जाता है। जब बढ़ जाएगा तो इस्कीमिया और नेक्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारे पास ये कफ प्रेशर गेज होती है। ये भी इक्विपमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में या मोस्टली अवेलेबल है। इसको हाफ आवरली आवरली डिपेंड्स ऑन दी प्रोसीजर, ये कफ प्रेशर चेक करते रहना चाहिए। 25 to 30 सेंटीमीटर वाटर इसका प्रेशर होना चाहिए। बिकॉज अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा जो इसका सप्लाई है टू दी मिकोजा वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोस्टली बता रहे थे कि नाइट्रस या इनके बाद ये प्रेशर 42 45 सेंटीमीटर 50 तक पहुंच जाता है। ये दिस इज टू मच, जबकि हमारी रेंज इन अडल्ट 25 to 30 सेंटीमीटर वाटर की दी हुई है। और इसकी कफ जो होता है, अच्छा कफ वाली स्लाइड लगता रह गई। अच्छा, इसकी कफ कैन बी हाई वॉल्यूम एंड लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, लो प्रेशर एंड लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। सो वी यूज हाई वॉल्यूम लो प्रेशर ताकि वॉल्यूम ज़्यादा हो प्रेशर कम हो। इंस्टेड कि प्रेशर ज़्यादा होगा तो नेक्रोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो वो यूज़ हाई वॉल्यूम लो प्रेशर। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ द ईटीटी, सॉरी वो उसकी जो है ना प्रेशर वाली स्लाइड नज़र नहीं है मुझे। सो अडल्ट मेल में हम 8 mmID करते हैं, फीमेल में 7 mmID करते हैं। बच्चों के अंदर इन्होंने एज के लिहाज से बताया हुआ है। और ओल्डर देन 1 ईयर के अंदर 16 प्लस एज इन ईयर 4, 3.5 प्लस एज इन ईयर्स और 3 है। ओल्डर देन 6 के अंदर ये फार्मूले हैं, ये मैं याद कर लेनी चाहिए। 4.5 प्लस एज इन ईयर्स और 4 है ऊपर वाले एज के लिहाज से। नीचे वाले इन्फेंट 1 kg के लिहाज से, ये वेट के लिहाज से दिए हुए हैं, ये वो एज के लिहाज से दिए हुए थे। चूज ए ट्यूब हुज एक्सटर्नल डायमीटर इज सेम विड्थ एज द पेशेंट डिस्टल। ये इन्होंने बताया है कि लेम एक्सक्यूज, इन्होंने बताया है कि हमारा रफ आइडिया हो सकता है पेशेंट की डिस्टल लिटिल फिंगर के मुताबिक उसका एक्सटर्नल डायमीटर। ये हमारे जो हम यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर होता है। ये बता रहा है कि लिटिल फिंगर का डायमीटर एक्सटर्नल बराबर हो तो वो हम यूज कर सकते हैं। कितनी डेप्थ तक लेके जाना है इसको उन्होंने एज के लिहाज से बताया हुआ, वेट के लिहाज से बताया हुआ, हाइट के लिहाज से बताया हुआ और जनरल भी बताया हुआ है। एज का फार्मूला एज ओवर 2 + 12 है। वेट का इन केजी 5 और 12 है। हाइट सेंटीमीटर ओवर 10 + 5 है। जनरल रूटीन में सेंटीमीटर में 3 इंटू इंटरनल डायमीटर मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आ जाता है।
ये वही वाली बात जो मैंने बताया था कि वोकल कार्ड से 2.5 सेंटीमीटर नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके आगे करीना आ जाएगा और डैमेज हो सकता है, और वो ब्लैक लाइन के थ्रू जो है ना 2.5 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। इन एवरेज साइज अडल्ट पेशेंट सिक्योरिंग द ट्यूब एट इंटीरियर इंसाइजर एट 23 सेंटीमीटर, मेल के अंदर 23 सेंटीमीटर मोस्टली, फीमेल के अंदर 21 सेंटीमीटर होता है, टू अवॉइड एंडोब्रोंकियल इंटुबेशन। मतलब ये है कि वन लंग हमारी वेंटिलेशन हो सकती है अगर हम इसको ज़्यादा आगे कर देंगे तो, और ट्रॉमा भी हो सकता है। फॉर नेजल इंटुबेशन अगर कम कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर शुड बी एडेड टू दीज लेंथ फॉर पोजीशनिंग एट द नेयर्स। वो हम इंसाइजर से कर रहे थे तो 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, अगर वो 23 है तो 5 ऐड करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा अगर हम नेजल से कर रहे होंगे तो। मैंने बताया था कि फेस मास्क डेड स्पेस बढ़ा देते हैं, ये डेड स्पेस हमारी कम कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, ये विदाउट कफ है, इसे कोली ट्यूब कहते हैं, ये बच्चों में यूज करते होते हैं। ये स्पायरल है, जैसे उनके डिफरेंट शेप दी हुई थी, इनकी भी है, ये हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। रबर, पीवीसी, सिलिकॉन की बनी हुई होती है, स्पायरल होती है, किसी भी शेप पे हम मोल्ड कर सकते हैं। जो बनी हुई आती है प्री फॉर्म की होती है, रिंग एडेयर एल्वेन होती है, नॉर्थ साउथ फेस होती है, ये हमारे नेक और हेड के अंदर यूज होती हैं। नॉर्थ फेस, साउथ फेस, मतलब नॉर्थ समझ, नॉर्थ एक ऊपर तरफ चली जाती है फोर हेड की तरफ, एक नीचे चीन की तरफ चली जाती है, तो ये प्री फॉर्म्ड होती हैं। इनका ये है कि नेक को ये हमारी किंग से बच जाता है, या उसकी सर्जरी की जो है ना उसमें मसला नहीं करते। और ये लिखा हुआ है कि सक्शनिंग भी सीधी करके सक्शनिंग भी कर सकते हैं। एंडोट्रोल ट्यूब्स, ये क्या है? हम ये मोस्टली अपने इमरान ट्यूब्स के अंदर इमरान स्टीलेट डालते हैं, इसके अंदर इन्होंने एक रिंग दिया हुआ है पर। सर इमरान सर जी, ये अली भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अली भाई, सर अनम्यूट करें अपना। डॉक्टर अली। मेरा सर, अच्छा मेरा तो म्यूट नहीं है सर, मैं वही कह रहा था। हाँ, आपका तो अन बॉडी मतलब सुन रहे हैं आप? जी आ रही है आवाज, अच्छा बोले बोले। जी जी सर, अच्छा अब आवाज आ रही इमरान, है आपकी। ये नॉर्थ और साउथ फेस में ना थोड़ा सा एक मतलब एक टिप मैं देने जा रहा हूँ कि एस फॉर स्टमक, एस फॉर साउथ। सर ठीक है, गुड। कि जो जी भी सर। ईटी आपकी स्टमक की तरफ डायरेक्टेड है, नेजल में आप बता रहे हैं वो मतलब आपकी एस फॉर स्टमक, एस फॉर साउथ। ठीक जी है, जी सर। और जो नाक के ऊपर चढ़ी है, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नोज। जी ठीक है, जी जी सर। तो इसको जरा मतलब एक थोड़ा सा टिप था। ये तो आगे याद रखते हैं वैसे, हम जल्दी नॉर्थ फेस कंटिन्यू ही किया। मोस्टली यूज करते हैं सर, मोस्टली क्या चीज? नॉर्थ फेस ही मोस्टली यूज करते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी, नॉर्थ फेस भी आती है वो, लेकिन बाज़ औक़ात आपको जरूरत पड़ जाती है साउथ फेसिंग ये की तो एग्जाम यूज में पड़ी करने के होती है लिए अक्सर ना। चीजें, ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें हैं, तो जी जी जी, सर। बस ये जी थोड़ा सा एक टिप ज़हन में रख लें कि एन फॉर नोज, एस फॉर स्टमक। ठीक है, जी एस सर, थैंक फॉर यू सर। साउथ, एस फॉर स्टमक। ठीक है, चलें कैरी सर ऑन कीजिए। जी सर। सो दिस इज एंडोट्रोल ट्यूब। मैं बता रहा था कि इस हम मोस्टली ईटीटी के अंदर स्टीलेट डालते हैं, लेकिन इसके अंदर इन्होंने आप देखें कनेक्टर के साथ एक रिंग दिया हुआ है, इस रिंग को खींचते हैं तो ये अपनी शेप बना लेता है, तो इसलिए इसको एंडोट्रोल ट्यूब भी कहा गया है। मैंने पहले ही बताया था कि ये ऑलमोस्ट सेम चीजें ही हैं, मैन्युफैक्चरर ने कोई चीजें ऐड की हैं तो वो उन्होंने डाल दी। अब हम अपनी थायराइड की सर्जरी कर रहे होते हैं तो हमने वोकल कार्ड चेक करना होता है, तो उसके अंदर रिकरल लेरेंजियल नर्व चेक करनी होती है, तो ईएमजी रीइंफोर्स्ड ट्यूब, इसके अंदर वायर डाली होती है इन्होंने, इलेक्ट्रोड्स लगा के हम वो अपनी उस वक्त ड्यूरिंग सर्जरी ही चेक करते रहते हैं, ना कि सर्जरी हो जाए उड़ जाए और बाद में चेक करते फिर बाद में कहें जी एनेस्थीसिया वालों ने खराब कर दिया, ये उस टाइम में कर सकते हैं। अदर लेजर की डिफरेंट टाइप दी हुई है, CO2 के लिए अलग होती हैं। तो ये जो है ना एल्यूमिनियम रैप मेड फ्रॉम सिलिकॉन विद एन इनर एल्यूमिनियम रैप एंड स्मूथ टेफ्लॉन आउटर कोटिंग। द कफ इज नॉन लेजर रेजिस्टेंट, ये एक चीज है, कफ इज नॉन लेजर। इसके अंदर आप वाटर भी ऐड कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू भी, इनके अंदर ये डिफरेंस होता है कि ये सिलिकॉन की मोस्टली या बनी हुई होती हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम रैप होता है और टेफ्लॉन आउटर कोटिंग होती है, कफ इनका रेजिस्टेंट नहीं होता, इसीलिए इसका हमारा क्वेश्चन भी आता है, तो इसलिए ये नॉन रेजिस्टेंट होता है। मिथाइलिन ब्लू ऐड कर देते हैं ताकि कलर से आइडिया हो जाए कि बस्ट हो गया, या वाटर से ताकि बस्ट ना हो, लिखा हुआ नीचे इट शुड बी इन्फ्लेट विद वाटर और सिलाइन वाटर। जिस तरह वो फ्लेक्सिबल ट्यूब्स थी, ये भी हमारी फ्लेक्सिबल है, इसको भी हम अपनी किसी भी शेप में फ्लेक्स कर सकते हैं। और लेजर ट्यूब्स, इसके अंदर दो कफ है, इसके अंदर फर्क यह है कि इसके अंदर दो कफ दिए हुए हैं, एक आउटर कफ, इनर कफ। अगर आउटर कफ बस्ट हो जाए तो इनर कफ से
सिलाइन और वाटर से जो है वो भरा हुआ होता है, तो वो एंड इट इज रिकमेंडेड फॉर यूज विद अर्गान CO2 लेजर। इसमें फ़र्क यह है कि लेजर ट्यूबस में फ़र्क यह है कि इसके 2 कप होते हैं। ये डबल ल्यूमन ट्यूब है जिसकी राइट और लेफ्ट साइड होती हैं, और कॉम्बी मैंने बताया था, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वो पड़ी हुई है तो आइडिया हो जाएगा ये कॉम्बी है और ये हमारी ये है। तो ये राइट साइडेड और लेफ्ट साइड होती है। ये एक पूरी टेक्निक है इसको चेक करने की भी, बिकॉज हम आज इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, तो जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू। तो इस इट कैन आल्सो बी राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड, मोस्टली वो यूज द लेफ्ट साइडेड। बाकी बाद में सर अली मार भी डिटेल में बताएंगे। एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर, ये तो था कि अगर हमारे पास डबल ल्यूमन हो या ना हो या कोई चीज़ हो या ना, अगर हमने ETT डाली हुई है तब हमें अगर वन लंग वेंटिलेट करना है या कोई हमें ब्रोंकाई ब्लॉक करना है, तो हम एंडोब्रोंकियल ब्लॉकर डाल के भी इन्फ्लेट करके वो अपना साइड राइट या लेफ्ट या कोई ब्रोंकाई हम अपना ब्लॉक कर सकते हैं। अगर हमने लेरेंक्स की सर्जरी करनी है, अब ETT कैसे डालें जनाब, तो उसके लिए एक अलग चीज़ चाहिए होती है। फिर हम डिफरेंट है, जैसे अब नेक्स्ट माइक्रो लेरेंजियल है, मतलब ये इसका साइज छोटा होता है, तो हमारा सर्जन के लिए जो है ना वो व्यू अच्छा बन जाता है। या फिर यह है कि ट्रेकियोस्टमी के थ्रू लेरिंगेक्टमी ट्यूब डाल देते हैं। तो लेरेंजियल सर्जरी के लिए लेरिंगेक्टमी ट्यूब होती है या माइक्रो लेरेंजियल ट्रेकियल ट्यूब सर्जरी होती है। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक है हमारा, ये लेरेंगोस्कोप्स हैं। इट कैन बी रिजिड एंड फाइबर ऑप्टिक, जो कि हम देखते भी रहते हैं। और फिर फाइबर ऑप्टिक कैन बी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये देखें, ये अक्सर तस्वीर खड़ी थी शुरू में, ये तो मुझे तो नहीं, आज प्रेजेंटेशन बनाते मुझे आइडिया होगा ये क्या चीज़ है। तो ये इट वाज द फर्स्ट लेरिंगोस्कोप विद अ यू हैंडल, हिस्ट्री इसकी दी हुई है। रिजिड लेरिंगोस्कोप वी कैन, इट हैज टू पार्ट्स, हैंडल एंड ब्लेड। सो ये आप हैंडल की पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लेड नहीं मूव किया उसने, हैंडल को फिक्स किया है डिफरेंट शेप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ओबीज, व्हाट्सोएवर। तो उसने हैंडल को, इसमें ब्लेड को नहीं किया, इसमें हैंडल था। ब्लेड्स के डिफरेंट साइजेस हैं, कौन कौन से होते हैं, ब्लेड के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टाइप्स ऑफ ब्लेड, हम मोस्टली मैकनटॉश ब्लेड यूज करते हैं मोस्टली, और वो हमारी राइट हैंड के लिए होती है। तो इसने लेफ्ट हैंड भी बनाई हुई है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड की है। अगर पेशेंट ओबीज है, ब्रेस्ट हाइपरट्रॉफी है, काइफोसिस है, बैरल चेस्ट है, शॉर्ट नेक है, रिस्ट्रिक्टेड नेक मोबिलिटी है, तो उसमें पोलियो नेक। ब्लेड, इसमें ब्लेड की फर्क है, उसमें हैंडल का वो बता रहा था मैंने आपको पहले। मैकनटॉश ने, अगर आप वो इंटूबेट करने की कोशिश कर रहे नहीं हो रहा, तो ऑक्सीजन डिलीवर भी कर सकते हैं, उसको उसने मैकपोर्ट या ऑक्सीपोर्ट मैकनटॉश कह दी है। मतलब ये है कि हम रूटीन में तो ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर सकते, लेकिन इसके अंदर पोर्ट होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी भी कर सकते हैं। मिलर स्ट्रेट ब्लेड होती है, बच्चों में मोस्टली यूज करते हैं ये। इसकी भी जो है ना ऑक्सीपोर्ट होती है, ऑक्सीपोर्ट मिलर, इसके साथ भी आप ऑक्सीजन जो है ना कर सकते हैं। टूल मिलर ब्लेड के अंदर सक्शन ऐड कर दिए इन्होंने, सक्शन पोर्ट ऐड कर दिए है। मतलब ये है कि आप सक्शन भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, सक्शन भी कर सकते हैं इनके अंदर इससे। फ्लेक्सिबल टिप ब्लेड, ये जो हम डिफरेंट पढ़ते हैं, मैकॉय पढ़ते हैं, फ्लिपर, फ्लेक्स टिप, ये फ्लेक्सिबल टिप ब्लेड होती है, ये मैकॉय की इसमें एग्जांपल दी हुई है। ये तो थी हमारी रिजिड। अब वीडियो है, वीडियो को उन्होंने हमारे मुख्तलिफ नाम पढ़ते रहते हैं, दे हैव गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द ब्लेड, अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ द ब्लेड, और उसकी कंड्यूट कैसा होता है उसका, कि उसके अंदर प्रिज्म दिया हुआ है या फाइबर ऑप्टिक दी हुई है या ऑप्टिकल स्टिलेट्स भी होते हैं हमारे। तो ब्लेड के लिहाज से नाम डिफरेंट दिए, सी मैग, ग्लाइडस्कोप, मैग्रॉथ, और सी मैग डी, और ग्लाइडस्कोप। कंड्यूट में एयर ट्रैक, ये बताता हूँ इसमें क्या फर्क है। ऑप्टिकल स्टिलेट्स भी हम देखते हैं आगे। तो ग्लाइडस्कोप, ग्लाइडस्कोप में क्या फर्क है, इसके अंदर ब्लेड हैज अ 60 डिग्री बेंड एट द मिड पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस। बाकी सर भी आपको बताएंगे व्हाट आई हैव नोटिस। इसमें ग्लाइडस्कोप के अंदर 60 डिग्री बेंड होता है। एयर ट्रैक के अंदर इसमें और बाकी सब में फर्क ये है कि इसके अंदर प्रिज्म होता है। ये ओल्ड टेक्निक शायद मेरे ख्याल में है, अब तो हमारे फाइबर ऑप्टिक आ गई है हमारी। तो इसमें प्रिज्म रिफ्लेक्शन आती है, उसमें हमारे फाइबर ऑप्टिक यूज करते हैं। ये रिजिड है, it is rigid metal blade specially designed to follow the contour of the oropharynx. This is rigid, and this is with the wire. This is flexible fiber optic laryngoscope. Complication क्या, डेंटल इंजरी है, डैमेज टू सॉफ्ट टिश्यू, इंजरी टू सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, रेगुलेटरी चेंजेस, ये हम रूटीन में देखते रहते हैं।
शॉक एंड बर्न्स मैंने वैसे कम देखे हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने देखी, TMG, डिजीज ट्रांसमिशन, मल्फॉर्मेशन, स्वेलिंग, सारी। शॉक एंड बर्न मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद ये होता होगा। ये बस छोटे से हैं। बूजी जिसे इशमैन स्टिलेट भी कहते हैं, एंडोट्रेकल ट्यूब इंट्रोड्यूसर भी कहते हैं, गम इलास्टिक बूजी भी कहते हैं। साइज इसका 15 FR है, टोटल लेंथ 60 to 70 सेंटीमीटर है। डिस्टल टिप के ऊपर 30 to 45 डिग्री इसका एक नाम भी होता है, मैंने पढ़ा तो मुझे जब याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये कनेक्टर या कैथेटर माउंट, हम कहते हैं वो दे दो वो दे दो, अक्सर हम कह रहे होते हैं। तो कैथेटर माउंट या कनेक्टर, ये हमारा मोस्टली जब हम पेशेंट शिफ्टिंग करा रहे होते हैं तो ये, या हमारी मोस्टली ट्यूब लगी होती हैं तो बेंट हो जाती हैं या डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, तो ये पीछे जो किंक्ड है ये कैथेटर माउंट है, आगे कनेक्टर लगा हुआ है। मोस्टली कनेक्टर ही यूज कर रहे थे, कैथेटर माउंट कम कम यूज करते हैं। एंट्री इंटूबेटिंग कैथेटर, हम तो मोस्टली बूजी के थ्रू इंटूबेट करते हैं, लेकिन ये हमने बताया था कि इंटूबेटिंग LMA है, ये इसके बारे में है कि ये हम उस LMA में एंट्री इंटूबेटिंग कैथेटर डालेंगे, फिर उसके ऊपर से हम वो निकाल के और अपना ये ETT डाल सकते हैं। एयर एक्सचेंज, ये भी हम जो है ना अपने उससे कर रहे होते हैं, बूजी से कर रहे होते हैं, स्टीलेट से कर रहे होते हैं, तो ये एक्सचेंज कैथेटर भी होते हैं। ये स्टीलेट्स होते हैं जो हम अपनी ट्यूब के अंदर मोस्टली डालते हैं। एंड दिस इज, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सर अली मार कैन हेल्प यू। ये बहुत ही, आई डोंट नो कैसी सारी इस बारे में करेंगे, लेकिन इतना बहुत बड़ा टॉपिक था, मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी, तो मैंने यही समझा कि बस नाम ही बता दें और कोई डिफरेंस जो है खास वही बता दी जाए। डिटेल में तो फिर वैसे फर्क यही है, मैंने 3 बुक्स पढ़ी हैं, तीनों चैप्टर पढ़े हैं मैंने, मॉर्गन भी पढ़ा है, स्मिथ भी पढ़ा है, और ये साइमन स्ट्रेसी भी पढ़ा है। सेम चीज़ें थी, सारे के सारे मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। डिफरेंस जो खास कंफ्यूजिंग थे वो मैंने बता दी हैं, जो मुझे खुद समझ नहीं आते थे। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक इफ यू। यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हाँ जी, एक्सीलेंट इमरान, ज़बरदस्त। आपने काफ़ी थैंक यू सर। चीज़ें को कवर भी किया है और बड़ा ज़बरदस्त हैंडल किया है। और ये जो है ना, टेक्नोलॉजी से भी यूज टू रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ज़बरदस्त जी प्रेजेंटेशन जी मेरी तरफ थैंक से। यू जी सर। ये सर डॉक्टर अली, डॉक्टर अरसलान की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे से कल रिहर्सल की थी टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी स्लाइड्स के बारे में डॉक्टर अली मार जैसे आपने कहा था, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया था। हाँ जी उन्होंने डॉक्टर कुछ जी। टिप दी थी, कुछ तो फॉलो हुई, कुछ नहीं हो सकती थी, वो मजबूरी थी, जैसे स्लाइड्स के बारे में सर ने कहा था, लेकिन मैंने कहा सर टॉपिक इतना लेंथी है, बताया मैं क्या करूँ। ये तो एक टॉपिक पे भी यानी कि SAD के ऊपर इससे भी ज़्यादा स्लाइड्स बन सकती हैं, डिटेल में हम जा सकते हैं। इसमें जी सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम। एनी कमेंट फ्रॉम डॉक्टर अली अमार सर? जी अली भाई, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करनी हो, कोई कमेंट? जी बात वैसे माशाल्लाह बहुत इसने कम्प्रिहेंसिव कवर किया स्लाइड्स को। एक चीज थोड़ा सा मतलब आने वाले जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उनके लिए कि प्रेजेंटेशन मेकिंग एंड प्रेजेंटेशन बनाना और उसको जी प्रेजेंट सर। करना एक आर्ट है। डेफिनेटली आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे, इसको भी इम्प्रूव कीजिए। मतलब रूल्स हैं, एक तो पर सिटिंग कोशिश कीजिए कि 20 से 30 स्लाइड से ज्यादा अपना उसमें ऐड करें, वरना इंटरेस्ट लूज हो जाता है थोड़ा सा। जी सर। सेकंड नंबर पे कुछ कलर स्कीम का एलिमेंट था, वो मैंने इमरान को पहले गाइड किया था, वो इन्होंने काफी इम्प्रूव भी किया कि कोशिश कीजिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जस्ट वाइट बैकग्राउंड एंड जस्ट राइटिंग्स, दैट्स एनफ। एनिमेशंस भी ज्यादा डालने की कोई जरूरत नहीं है आपको व्हाटसोएवर, बट इमरान ने एनिमेशंस यूज नहीं किए। अच्छा, ये मतलब प्रेजेंटेशन के हवाले से थोड़ा सा गाइडलाइन था। और दूसरा, जब भी प्रेजेंटेशन बनाएं उसको अपीलिंग बनाने के लिए आपको कलर चार्ट्स अभी मिल जाएंगे इसके ऊपर, मतलब गूगल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कलर चार्ट्स कि कौन सा कलर किसके साथ कैसे मैच करता है। ये आपको एक अट्रैक्टिव लुक देगा प्रेजेंटेशन में। जूम का मतलब क्लासरूम के हवाले से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग इस वक्त सारे, हम इवन अपने डिपार्टमेंट में भी होते हुए इकट्ठे नहीं हो सकते जितने कि हम अब इस वक्त इस फोरम पे बैठे हुए हैं। जी ठीक सर, है। ये सबसे अच्छी बात और है। हाँ, और माशाल्लाह यानी सारों ने ही इस चीज को सुना, एक्टिवली देखा सारा कुछ। अच्छा, अब आ गई यानी थोड़ी सी इक्विपमेंट के हवाले से, तो डेफिनेटली जो प्रेजेंटेशन होती है वो या क्लास का लेक्चर कोई भी है वो आपको सिर्फ एक कोर नॉलेज ही देता है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट टच किया, इमरान ने बहुत अच्छा किया, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने तमाम यानी जो डिवाइसेस थे उनको टच करते चले गए, और उसमें जो भी माइनर डिफरेंसेस थे इन्होंने मतलब उनको पॉइंट आउट करते चले गए।
एक चीज की मैं कमी महसूस कर रहा था कि जैसे अब डबल ह्यूमन इन्होंने डिस्कस किया ना, तो जहाँ कंपैरिजन आप बता रहे हैं वहां अगर आप दो पिक्चर साइड बाय साइड कर लें जी और सर। खसूसन राइट साइडेड में यानी कम्बी और डबल ह्यूमन की, तो लोगों को जी जरा समझने में आसान हो जाता। यस तीसरा सर। जो एक एलिमेंट मिला वो ये था कि जैसे राइट साइडेड डबल ह्यूमन ट्यूब है वो हमेशा लोगों को फेल करती है। ठीक है, कि जो डबल सर ह्यूमन मैं राइट एक बताना साइडेड है भूल गया, उसके। जैसे सर आपने अच्छी बात की है, मैंने ये पॉइंट पढ़ा था राइट साइड में सर, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उसके अंदर उन्होंने होल ओपनिंग दी हुई है जस्ट टू फॉर दी, ये एक डिफरेंस जी है जो बस आपको बिल्कुल, कभी नहीं भूलना चाहिए सर। बस सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि नीले बलून के अंदर अगर कोई होल है ना, दैट इज राइट साइडेड, होल है बस। सर, यस सर। आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है जी सर, राइट अगर साइडेड या लेफ्ट होल साइड आपको के नजर आ जाए तो दरमियान। समझेंगे राइट साइड है। हाँ जी बिल्कुल। अब वो एयर ट्रैक हमारे जमाने में कभी किसी जमाने में आया करता था, हम यूज करते थे प्रिज्म टेक्नोलॉजी आप बता रहे हुए हैं, तो उसके साथ उन्होंने ग्लाइडोस्कोप बनाया हुआ है व्हाटएवर प्रिज्म टेक्नोलॉजी के साथ। जी बहरहाल सर। यानी नो हाउ होनी चाहिए। और तमाम दोस्तों से रहेगी रिक्वेस्ट के एक तो मतलब जो चीज समझ ना आए, आजकल गूगल और यूट्यूब सबसे इन जा रहा हुआ है। ठीक जी है, सर। तो मतलब जैसे एयर ट्रैक है, ग्लाइडोस्कोप है, ये चीजें मतलब हम अगर प्रैक्टिकल यूज होते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू सी देम। तो प्रेजेंटेशन एक तो आप व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर करेंगे ये डेफिनेटली, तो ताकि एक दफा रिव्यू हो जाए सारों का। और यानी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये फोरम अगर हम इसी तरह एक्टिव रखते रहेंगे, तो मुझे खुद भी अपना वो क्लासरूम का जमाना याद आ रहा था जब हम सलमान साहब के साथ बैठे होते थे, तो डिस्कशन चल रही होती थी, उस वक्त हमें नींद आ रही होती थी, इस वक्त रात का टाइम ऐसा हो रहा है कि वाकई नींद आ रही है। ठीक है, तो लेकिन टाइम निकाल के, और ये एक अच्छा टाइम है जिसमें हमने पूरा कंसंट्रेशन के साथ सब लोगों ने इसको अटेंड किया। ठीक है, तो बाकी फिर आमिर भाई कुछ ऐड करते हैं फर्दर तो मजीद कर लेते हैं, बाकी तमाम दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे हैं नीचे, मैं देख भी रहा हूँ, जी तो उम्मीद आई है वाज कि कंफ्यूज कि सर आप भी ऐसे माशाल्लाह है यहाँ पे जो इक्विपमेंट में काफी ज्यादा थे, तो मेरे फैसिलिटेटर भी आप थे। मैंने कहा कि देखें कैसा होता है। सही। लेकिन चले अगर आपकी बहरहाल क्लासेस ली हुई हैं इंशाल्लाह। तो काफी आपने एग्जाम में से बताया था डिफरेंस, काफी सारी चीजें आपसे सीखी हुई हैं। सही। चलिए आबिर भाई कुछ आप जी जी फर्दर जी। ऐड करना चाहें, और बाकी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से सीनियर लोग भी अवेलेबल हैं, हाँ तो जी। अगर उनका कमेंट भी आ जाएगा तो इस सब रेजिडेंट्स के लिए भी एक बड़ा इनकरेजिंग हो जाएगा। टाइम क्योंकि शॉर्ट है सबके पास ही, हाँ तो जरा हाँ जल्दी जल्दी सबकी तरफ चलते हैं। हाँ जी, उसमें हैंड रेज जो जो करेगा मैं उसको ऑन कर दूंगा। बाकी अली भाई अभी एक बात जो कर रहे थे प्रेजेंटेशन बनाने के हवाले से, तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इस पे हम जो है ना कोशिश करेंगे, बल्कि अली भाई को ही कहेंगे कि इस पे ना एक वीडियो या प्रेजेंटेशन, वो हमने 12 को वर्कशॉप रखी हुई है, उस पर ये कुछ डिटेल हम शेयर करेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है। तो उसके बाद एक और फ्लो बढ़ जाएगा, तो वो भी हम इसमें शेयर कर दें। अच्छा, मेरे जहन में एक आइडिया आज बैठे बैठे आ रहा था कि ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, इसका हमें अल्टीमेटली हम अपने पूरे एनेस्थीसिया को ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे आज एनेस्थीसिया इक्विपमेंट की ये क्लास है, हमने रिकॉर्ड कर ली, इसको हम जो है ना कन्वर्ट करके यूट्यूब पे भी और अपने ग्रुप्स में भी डाल देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्स इकट्ठा हो जाएगा कि जिसको हम ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज और करनी है, इस पे थोड़ी सी मेरे ख्याल में टाइम लगेगा, फिर हम यूज टू होना शुरू हो जाएंगे, कि ये जैसे इक्विपमेंट है ना, जैसे आपने डबल ह्यूमन पढ़ाई, अब डबल ह्यूमन की अगर आप 5 मिनट की वीडियो बना दें, और ये अभी यूज टू हो जाएंगे सारे लोग ऐसा ऐसा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब बहुत इन होगी, तो 5 मिनट की वीडियो बनाएं, वो वीडियो आप जो है ना ग्रुप में डाल दें, और उसके साथ हम अपने जी जो है ना स्टोर में उसको रख लेंगे। तो इस तरह से ये सारी आपकी बुक जो है वो सारी ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे आपको जो है ना जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर हैं वो बड़ी इजीली उसको ग्रिप कर लेंगे। बाकी अभी ये डॉक्टर साकिब साहब हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, करें बात। थैंक यू सो मच सर, बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन थी, बहुत मज़ा आया। ये टाइमिंग थोड़ी थैंक यू सी मेरा सर। ख्याल है लेट है सर, जी जी। इसमें थोड़ा सा अगर अर्ली होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब उसमें सुबह उठ के फिर सैरी वगैरह भी करनी होती है। हाँ हाँ। अच्छा, एक एक दो चीज़ें हैं इसमें, बाकी लोग भी सुन रहे हैं उसमें, जो
इक्विपमेंट का है वो you want to oxygenate the patient, you want to ventilate the patient. So in case of emergency, when you cannot handle the airway, so then you go for the surgical airway. As a cricothyroidotomy है या emergency जो है ना उसमें you use 11 number blade and you do cricothyroidotomy. So that point should be मतलब highlighted के in case of airway obstruction, a severe airway obstruction, when you cannot ventilate, cannot intubate, then you should do in seconds, not even minutes. You should do in seconds cricothyroidotomy, and you establish the airway and you ventilate the patient to prevent the anoxic damage. Whenever you mention airway devices, you should mention the cricothyroidotomy, that everybody should know that in case of emergency, you will do cricothyroidotomy and you will maintain the airway and you maintain the oxygenation of the patient. But I just wanted to add the excellent presentation by the Dr. Imran, and I'm very happy that I have joined this forum, and this is very, very informative. Dr. Amir Furqan is appreciable his efforts for teaching of the anesthesia, and this corona is becoming a blessing in disguise for developing this technology, for teaching all of us and for learning purposes. Thank you so much. Sir. Thank you, Dr. Saqib, for these nice comments and addition of valuable information. अब इसमें एक दो कमेंट्स थे, इसमें कुछ लोग कह रहे थे जो क्विज वाले एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस कर लें, तो उसका हमने ये डिसाइड किया है कि बिकॉज ये एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम असेसमेंट या किसी का एग्जाम नहीं ले रहे, तो हमारी जो क्विज था उसका मकसद भी ये था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आपको थोड़ा सा जो है ना कंसंट्रेट करने के लिए एक मटेरियल दे दें। तो उसका भी आंसर यही है कि आप लोग खुद से ही उसके जवाब ढूंढें, और कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसको जो है वो फोरम में जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दें, तो हम जो हमारे सीनियर हैं वो उसका जवाब दे देंगे। तो हमारा ये जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड क्विज नहीं है कि हम आपका कोई रिजल्ट अनाउंस करें या कम और ज़्यादा, उसका फैसला आपने खुद ही करना है कि आपका कौन सा ठीक था और कौन सा गलत था। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि असेसमेंट ड्राइव लर्निंग, कि हम ऐसा एक क्विज दें जिससे आप उन टॉपिक्स की तरफ आएँ और उनको सीखें। ये डॉक्टर रजिया हैं, आई थिंक वो कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज़ आपका माइक अनम्यूट है। Just to complete the list, I wanted to add percutaneous dilational tracheostomy also. जी, यस, ठीक है। जी सर, इसमें सर एक स्लाइड आई थी जब मैंने सुप्राग्लॉटिक एसेस और इंफ्राग्लॉटिक एसेस के बारे में बताया था, तो मैंने सिर्फ फिर डिस्कस सुप्राग्लॉटिक एसेस को किया था, इंफ्राग्लॉटिक एसेस को किया ही नहीं था, वो फिर अलग थोड़ा था, लेकिन सर कह रहे हैं कि वो चीज मस्ट चीज है सर। जी सर, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें। सॉरी, मैंने पहले का देखा नहीं असल में, तो I was a bit late. ये मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आप दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा। थैंक यू। ओके जी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब इसमें ना कुछ आइडियाज अभी भी, यानी कि एक इमरान की बड़ी अच्छी एफर्ट थी, उसने सारी चीज़ों को टच करने की कोशिश की, लेकिन इतने टाइम में सबको टच करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो चीज़ें रह गई हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इसकी तरफ थोड़ा सा आएँ, ये डॉक्टर अली इमार ने शेयर की है कि इस तरफ आएँ, आप छोटी छोटी वीडियो बनाएं। जैसे आप जो है ना एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं और हम पढ़ भी रहे होते हैं एट बेड साइड और जो है ना टेबल पे, तो उस वक्त आप बताएं जी कि ये इसकी शेफ्ट है, ये इसका कनेक्टर है, ये मर्फी जाइज है, और उसको 5 मिनट में बना के आप उसको जो है ना सेंड कर दें, ग्रुप में सेंड कर दें, हम उसको यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। तो उसमें एक्चुअली ये फोरम है, कल एक दोस्त ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया, उन्होंने कहा जी कि ये एक ऐसा फोरम डेवलप कर लिया हमने जिसपे कोई बंदा भी आगे हीरो बन जाए, कि इट्स ओपन फॉर यू, ये किसी एक खास बंदे का नहीं है। आप आएँ, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल यहाँ पे शो कराएं, आप अपनी टीचिंग स्किल यहाँ पे शो करें, अपने आप को बेनिफिट दें। देखें, जब बंदा पढ़ाता है तो सबसे ज़्यादा खुद वो सीखता है,
और दूसरों को भी बेनिफिट होगा। तो इन चीज़ों की तरफ आप टून अप इंशाल्लाह ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाएंगे। कुछ टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, तो ये चीज़ें ज़्यादा जो है ना फर्निश होकर आगे बढ़ेंगी। तो ये कुछ बेसिक डिबेट थी। आई थिंक हमारा टाइम ओवर हो गया, ओवर बल्कि 1 मिनट रहता है। तो कोई ऐड करना चाहे एनीवन तो उसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन हम हमारी कमिटमेंट ये है कि 1 आवर मीन 1 आवर, तो उसमें ही रहेंगे। फर्दर चीज़ें हम ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे। बाकी एज ए ऑब्जर्वर मैंने ये सारे जो प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है रमज़ान भी है, उसके बावजूद भी जो हमारा स्टडी फेज था उसका हमें आउटपुट मिला इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो हमें जो है ना वो मोर देन 30 पीपल की तरफ से हमें वो एमसीक्यूज रिसीव हुए, और मेरा ख्याल ये था कि ये फर्स्ट वीक का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था। तभी लोग टेक्नोलॉजी से भी यूज़ नहीं है, फॉर्म फिल करने में भी डिफ़िकल्टी थी, रमज़ान में पढ़ना भी मुश्किल है, उसके बावजूद 30 पीपल की तरफ से रिस्पांस मेरे लिए बड़े बहुत इनकरेजिंग था। अच्छा, उसके बाद जो क्विज़ हमने अपलोड किया, तो क्विज़ को अभी तक 44 लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो दैट इज़ आल्सो एन इनकरेजिंग साइन। और इस वक्त हमारी इस क्लास को 45 के करीब लोगों ने टच किया। थोड़ी आगे पीछे फ्लक्चुएशन होती है, किसी का डिस्कनेक्ट हो जाए, तो 45 लोगों ने इसको सुना है। तो ये मेरे अपने असेसमेंट के हिसाब से ये बहुत इनकरेजिंग है, और बहुत जो है ना पॉजिटिवली आप लोगों की तरफ से कि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और इसके साथ ही सबसे अहम चीज़, डॉक्टर अली अमार, उन्होंने इस पे जो है ना एज ए फैसिलिटेटर चीज़ों को जो है वो मुकम्मल बैकग्राउंड में इन टच रहे हर फेज पे। जी अली भाई आप अनम्यूट कर लें, आपका अनम्यूट है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो हमारा क्लासरूम का फोरम व्हाट्सएप पे है उसको प्लीज फॉरवर्डेड मैसेजेस के लिए यूज ना कीजिए। जी कोई पॉलिटिकल शेयरिंग या कोई भी दुआ या कलमात वगैरह, वो बाकी बहुत फोरम्स हैं, ऐसे इस ही, पे कोशिश कीजिए कि फोकस्ड रहे, वरना वो जो ओरिजिनल टारगेट है हम उससे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी, और इंशाल्लाह फीडबैक भी सबको बहुत अच्छा रहेगा इस मामले में। जी बिल्कुल ऐसे ही। उसमें मैंने वो एक जो है ना ग्राउंड रूल्स का बनाया था मैसेज, वो मेरे ख्याल में हम दूसरे तीसरे दिन उसको शेयर करते रहेंगे कि इसमें बस आप क्लास से रिलेटेड बात करें। और उसको फॉरवर्डेड मैसेज ये अली भाई ने ठीक बात कर दी कि फोकस्ड रहना है हमने, कि बाकी शेयरिंग के लिए गपशप के लिए बहुत मल्टीपल हमारे पास फोरम्स हैं, तो इसमें हमने इसी चीज़ को फोकस करना है। और 4 फेजेस जो है ना वो उस पर बार बार मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट उसकी जो है डेप्थ है और किस तरह से वो लर्निंग को इम्प्रूव करता है, उस पर कंसंट्रेट करें। और उन चारों को आप फेस करेंगे ना, फॉलो करेंगे, तो अल्टीमेटली आप अपने उस टॉपिक पे जो है ना वो 50+60-70% आप उसकी रिटेंशन पे आ जाएंगे। किसी की तरफ से कोई कमेंट, अदरवाइज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर बिलाल दुरानी जी, आपका ऑन है माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी बस। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स वेरी encouraging टू सी आज हमारे सारे अनस्टार्टर्स एक फोरम बना के और उस पर अंडर ग्रेड और रेजिडेंट्स के लिए हम लोग लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। इट्स वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और इट्स वेरी इंकरेजिंग कि पाकिस्तान में हम इस तरह की क्लासेस ले सकें, क्योंकि आपको यूट्यूब पे इवन इंडियंस की आपको वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें वो सिखा रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं। तो it's a very commendable effort, and I want to congratulate both of you and all the participants. Thank you. थैंक यू, Thank you, सो sir. मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो मशीन पे होगा नेक्स्ट वीक। मशीन और उसके साथ अदर इक्विपमेंट्स जो रह गए, जैसे डायथर्मी है, डिफिब्रिलेटर है, उसके बाद जो है सक्शन मशीन है, इस तरह के, और क्या कहते हैं पेस मेकर है, ये कुछ मिसलिनियस से टॉपिक है, हम वो शेयर कर देंगे। मशीन प्लस दीज मिसलिनियस टॉपिक, इस पे आप बुध तक पढ़ें, स्टडी करें, एमसीक्यूज बनाएं, और उसके बाद जो है ना हम उसी तरह से फिर आपके साथ क्विज शेयर करेंगे। इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे क्विज का नंबर बढ़े, इस दफ़ा हमने 10 लिया था, और नेक्स्ट पे जो है ना कोशिश करेंगे हम इससे ज़्यादा नंबर लें, वो एमसीक्यूज लें और कुछ एससीक्यूज भी लें। एससीक्यूज पे थोड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों में रही है कि ये 10 नंबर का अटैम्प्ट करें, क्योंकि एमएस के फॉर्मेट में 10 नंबर का एससीक्यूज आ रहा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको हो जाए। तो मोस्टली लोगों की शायद वो ऊपर एक .2 लिखा हुआ था, तो उससे कन्फ्यूजन हो गई कि जो है ना वो 2 नंबर का उन्होंने लिखा।
तो वो आप 10 नंबर का अटेम्प्ट किया करें। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन है, होपफुली आपकी तरफ से मल्टीपल आएंगे और हमें खुद टास्क करना पड़ेगा। तो लेट्स सी अगले वीक में कैसे चलता है। तो डॉक्टर अली अमार ही फैसिलिटेट करेंगे ये हमारा पहला पूरा मॉड्यूल, इसमें इक्विपमेंट है, मशीन है और फार्माकोलॉजी का फिर डिस्कस कर लेंगे अगर डॉक्टर अली कंटिन्यू करेंगे या किसी और टीचर को उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।